गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इनफॉर्मली रखूंगा और आप लोग सब जो भी वीडियो नहीं ऑन किए वो ऑन कर लीजिए, तो फिर सेशन में भी मजा आएगा, राइट। देखिए, पहले नाड़ी एस्ट्रोलॉजी समझने और सीखने से पहले या उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी एनरिच आवर लाइफ। जानना चाहते हैं ना भाई, एस्ट्रोलॉजी सीखने से फायदा क्या है? आप बोल तो रहे हैं पंडित जी हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, ढिंडोरा पीट रहे हैं, सब टॉक कर रहे हैं, पर क्यों होना चाहिए? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसा गुरुदेव बोलते हैं, astrology is a GPS of our life, and we have so many events in our life from birth till we leave this planet, from breathe in to breathe out. We have so many events like birth of a child, education of a child, studies of a child, profession of a child, after profession, marriage, anybody, boy, girl, anyone. Marriage ke baad again you have the cycle of kids, again financial targets, financial achievements, prosperity at home, relationship, very important. In fact, relationship starts before marriage, love marriage, after marriage, relationship with the parents, with the siblings, with the family, right? So many things come up, so many events are there in the life, and if you know and plan these events in advance, that can make your life much easier than getting a surprise all the time or most of the time. Or if you are in a conflict situation, if you are in trouble, if you are in pain, astrology helps you a lot. There are multi things and many things where astrology is important. Want to know? So first I said GPS of life, right? For the events. Second, it gives you a good sense that whatever is happening in my life, good or bad, only my stars are responsible, nobody else. Most of the time, conflict is my boyfriend is not behaving, my friend is not behaving, I have trouble with my husband, I have trouble with my wife, my kids. You don't know the secret that if you align your energy
trouble with the family, trouble with the kids, trouble with the husband, trouble with anyone in the family or in relationship get corrected automatically. मतलब आप दूसरे को नहीं कर रहे, आप अपने आप को, आप अपने आप के सितारे खुद ही ठीक कर रहे हैं. मतलब यूनिक है ना, शायद पता, मुझे नहीं मालूम किसने बताया कि नहीं बताया. आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं. यू आर वर्किंग ऑन योर स्टार्स एंड योर रिलेशनशिप, योर जॉब, योर फाइनेंशियल थिंग्स, एवरीथिंग इंप्रूव्स. लोग तो बाहर वर्क करने को बोलते हैं, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, कौवे को खिला दो. उन सबसे कुछ नहीं होने वाला. इस मंदिर चले जाओ, ठीक है, मंदिर जाना चाहिए, एनर्जी अच्छी होती है. आई एम नॉट अगेंस्ट गोइंग एनी प्लेस, बट if we know that just by fixing our things, our planets, our energies, will fix the whole problem. So it gives you wisdom, a great amount of wisdom. Matlab, I can say that astrology can lead you to enlightenment. That is not a wrong statement. Maybe it's a big statement, but it is not a wrong statement. Because if you are at a wisdom, if you are in the wisdom, you work on your things, your energies, rather than wasting your time in correcting others or blaming situations. And it is possible. You might be wondering how it is possible. It is possible. I have seen hundreds and thousands of cases like that. There are so many case studies I have. People aligning their own stars and their things are getting better. So it gives you a great amount of wisdom. और क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? आई वुड से इंटरेस्ट तो है, बहुत अच्छी बात है, आप सबका इंटरेस्ट, आप सीखना चाहते हैं, पर ये इंटरेस्ट भी ऐसे नहीं आता. ये इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे लगता है. दिस इंटरेस्ट और somebody, कोई आपको भाई धक्का देके के कैसे भी भेजता है, सुदर्शन क्रिया कर लो, उसके बाद तो थैंक यू बोलते हो ना उसको करने के बाद, अच्छा ही लगता है ना. तो it creates a space of good wisdom, good sense of judgment, or I would say good sense of flow in the events, of various events, not judgment, but basically flow in the events. Whatever events happen in their life, you just flow in and go smoothly. फिर तो बोलते हैं ना, move on करते रहो, ऐसे ही बस move on. लाइफ में move on करना बहुत आसान हो जाता है. लिखा है ब्रेक होगा बॉयफ्रेंड से, ये टाइम है, इसके बाद नहीं होगा, पता है, बड़े आराम से, यार ये लिखा हुआ है, मेरे स्टार्स में लिखा हुआ है ब्रेकअप, उसको क्या ब्लेम करूं, उसने चीट किया, ये किया, वो किया, व्हाटएवर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. या पत्नी से कहीं दूरी है, सेपरेशन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो भाई ज्योतिष जो है ना, बिना उपाय के अधूरा है. तो उपाय भी आते हैं इसमें, बिकॉज एवरीथिंग इन द चार्ट इज द कर्मा. चार्ट में जो भी है वो क्या है, वो कर्मा है. तो अगर आपको पता है आप कैसे कर्मों को, देखो चेंज तो कोई नहीं कर सकता, चेंज तो भगवान भी नहीं कर सकते. चेंज करना तो बहुत इम्पॉसिबल सा है. गुरु जरूर चेंज कर सकते हैं. देखिए गुरु की कितनी पावर है कि गुरु चेंज कर सकते हैं, पर भगवान नहीं चेंज कर सकते. भाई राम जी भी आए, कृष्ण जी भी आए, सारे कर्मा तो करने ही पड़े ना. कितनी लाइफ में चैलेंज रहा, राइट. तो कर्मों को अलाइन में जिसे कहता हूँ, वो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से, एस्ट्रोलॉजी सीख के आप कर सकते हो टू ए गुड एक्सटेंट. अगर आपको पता है आपके प्लस एंड माइनस ये हैं, आपके ये वीक एरियाज है. शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं ना, हम लोग करते हैं, एमबीए स्टूडेंट्स या बहुत लोग कंपनी में जो काम करते हैं, आप अपनी लाइफ का ना बहुत अच्छा शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हो अपनी लाइफ का, नॉट ऑफ ए वन प्रोजेक्ट. लाइफ तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना. तो अपनी लाइफ का शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हो, अपने आप की आप स्वॉट एनालिसिस कर लेते हो, और यू स्टार्ट believing maybe that everything in the life is happening.
You are not doing anything. Everything is happening, and that itself is a very big eureka. You know, कुछ जल गया, कुछ दिमाग में बत्ती जल गई. अगर खुद बताओ कि यार एवरीथिंग इज फ्लोइंग और मैं यहाँ अपना रोल निभा रहा हूँ, बस उसको ठीक से निभा लूं, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. आई टेल यू, हर चीज में, रिलेशनशिप में, मनी में, पैसे में, फाइनेंस, किड्स, एनीथिंग, हेल्थ, एनीथिंग. तो मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी कैन लीड यू, कैन फास्टर योर ग्रोथ टू द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट. मेरे को नहीं लगता किसी ने बोला होगा ये स्टेटमेंट, पर इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द ऊपर से ही आ रहा है. तो इतना बड़ा, और एस्ट्रोलॉजी का वेदांग है. वेद, आप एक वेद पढ़ रहे हैं, एक तरह से वेद का अंग है एस्ट्रोलॉजी, वेदांग बोला गया. तो और मैंने जैसे बोला ना, इसको इंटरेस्ट आना भी एक ब्लेसिंग है. ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी ना, तो वो मे बी ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होगा, बट ये फिर कई जन्मों का साथ है. सिर्फ इस जगह ऐसी विद्या है, मुझे तो यही लगता है. एक बार आपने सीख ली ना, तो वैसे तो कोई देखो प्रूव नहीं कर सकता. आप रिग्रेशन में जाएंगे या उसमें जाएंगे, बहुत सारी टेक्निक है पास्ट लाइफ की, तो जाएंगे और इस लाइफ में जाएंगे, वो सब थोड़ा लॉजिकली समझना मुश्किल हो जाएगा. पर मुझे मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी में जब एक बार आ जाते हो तो एक ब्लेसिंग है, और जब आप एक बार कर लेते हो, उस विद्या को प्राप्त कर लेते हो, तो ये आपके साथ कई जन्मों तक स्टे करते हैं. वो बात अलग है कि भाई हमें तो यही जन्म का है, तो हम इसी जन्म में रहेंगे, ज्यादा आगे पीछे की नहीं जाएंगे. पर ये ऐसी विद्या है, सोचो कि आप कई जन्मों का इसका साथ हो जाता है. क्योंकि हमने देखा है कई लोगों का जो है इस लाइन में, या जो सही में बड़े हुए, फेमस हुए, जब उनकी चीजें सुनी गई, बायोग्राफीज या कुछ भी ऐसा पढ़ा गया या एक्सपीरियंस लिया गया प्रैक्टिकल, तो उनको पता चला कि भाई ये अभी इस जन्म का नहीं है, तो पिछले जन्म में भी मैं ऐसे ही करता था. मैंने अपने आप को ही पता नहीं कितने उसमें देखा है, तो वो चलो वो अलग स्टोरी है. बट मैं कहूँगा कि एक बार आ गई ना आपके पास, तो आपके पास ये आपका धन है जो आप देखो. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आदमी जब छोड़ता है तो कुछ नहीं जाता उसके साथ. हाँ, कुछ भी नहीं जाता. ठीक है, पाप पुण्य का हिसाब हो जाता, खत्म हो जाता. पर मेरे को लगता है ये एक ऐसी चीज है जो आगे कई टाइम तक आपके पास रहती है. क्योंकि ये इंटेंशन क्या है, एस्ट्रोलॉजी सीखने का इंटेंशन क्या है? दूसरों की हेल्प करना. जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, ठीक है, आप उसका पैसा लेते हो, चार्ज करते हो, एक्सचेंज करते, कहीं आप करते भी हो, उस पैसे को जो लेते हो उसको दान भी करते हो. ऑब्वियसली मैं जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई अगर तुम पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर हो, मतलब आपकी अच्छी जॉब है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, तो मैं बोलता हूँ कम से कम 40 to 50% आपको दान करना चाहिए. बिकॉज देन ओनली योर थिंग्स कैन बी परफेक्ट. मैं स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत रिलीजियसली मानते हैं. हाँ, अगर आप फुल टाइम हो इसमें, तो देखो फुल टाइम तो आप किसी भी जॉब में हो, आपको 10 से 20%, इनफैक्ट 20% आपको तो दान करना ही चाहिए, अपने गुरु को देना ही चाहिए. 20%, 10% नहीं, 10% तो आपका हक ही नहीं है. 10% तो ऑलरेडी गुरु का है. तो 10% को अगर कोई दान करता है तो वो दान नहीं है. तो सपोज आपने 100 रुपए कमाए, आप 10% दान कर रहे हो, 10 रुपए, तो वो दान नहीं, वो तो ऑलरेडी गुरु का है. 10% जब ऊपर आते हो ना, तो वो दान कहा जाता है. और दान क्या भाई, उन्हीं का है, वही दे रहे, हम तो उनको बस लौटा रहे हैं. और वो भी 100% लौटाना चाहिए तो 20% दे रहे हैं. समझ रहे मेरी बात? भाई गुरु तो माता पिता से भी ऊपर है ना. तो भाई अब तो खैर पहले तो यही होता था ना, कमाई के लाके गए और पिता के हाथ में दे दिया, माता के हाथ में दे दी, और फिर उनसे पैसे लिए. चलो वो टाइम नहीं रहा, टाइम चेंज होता है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कमाते भी हो इससे, तो इसको दान करोगे तो बरकत होगी. दान करोगे, दोगे इसको किसी भले काम में, अपने गुरु को, अपनी चीजों को दोगे, तो इससे बरकत होगी. पैसा तो बहुत कमा लोगे. एस्ट्रोलॉजी तो देखो ऐसा है कि अगर मतलब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो सही में मैजिकल है. मतलब मैं आपको कितने सारे
दिखा दूं, जिसमें वीडियोस में और सब में एक दो दिखा भी दूंगा। और आपने शायद जहाँ जो मेरे को जानते हैं उन्हें ट्विटर पे देखा भी होगा भाई, 90-95% प्रिडिक्शन मेरे को नहीं लगता कोई क्लेम करता होगा या कोई ऐसे कंसिस्टेंटली देता होगा। बहुत कम मिलेंगे दुनिया में, बहुत कम मिलेंगे, गिने चुने। और कोई बोले कि मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, देखो करना अलग बात है, एक आदमी कर रहा है और वो कर रहा है तो हो सकता है एक आदमी कोई कर रहा होगा 90-95% उसकी प्रिडिक्शन सही होगी, पर वो बोला कि मैं भी आपको अपने जैसा बना दूंगा, तो ये शायद बहुत कम जगह होगा, मेरे को नहीं लगता पूरी दुनिया में। तो मैं तो चाहता हूँ अगर मैं 90-95 करता हूँ तो मैं आपको भी 90-95 पहुंचा दूं। तो जो मेरे पास है वो मैं सब बांट दूं। और एक किताब में पढ़ने से नहीं होता कि किताब आपने खरीद ली एस्ट्रोलॉजी की, नाड़ी की, हजारों किताबें पढ़ लिया उसमें से, ये तो दिया जाता है जैसे ज्ञान, जैसे गुरु देता है ना वैसे ही ज्ञान दिया जाता है। अब गुरु तो हमारे एक ही है, उन्होंने दिया, हम बांट रहे हैं, हमको बोला बांटने को तो हम बांट रहे हैं, तो ये दिया जाता है। तो अगर आप को इंटरेस्ट है कहीं पर भी कि मुझे ऐसा सीख के लोगों को, सो हु ऑल कैन डू, साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेटर्स, लाइफ कोच, लाइफ मोटिवेटर्स, जिनका पब्लिक इंटरेक्शन है लोगों से, स्वामी जीज हो गए, ऑल टीचर्स हो गए, कितने यूएस में तो पता नहीं 50 टीचर्स ने सीखा है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। तो जिनका पब्लिक में इंटरेक्शन है उनके लिए तो ये बून है, जिनको गाइड करना है, जिनको हेल्प करना है, उनके लिए तो बून है, ये वरदान है। क्योंकि भाई देखो आपके पास कोई तकलीफ में आता है, आप उसको बोलते हो हाँ ठीक है यार पैसे की कमी, थोड़ा सांत्वना दे दोगे, थोड़ा कुछ कर दोगे, पर आप भी क्लूलेस होते हो एक तरह से देखा जाए कि यार इसको हेल्प कैसे करूं, इसका आगे वाला टाइम कैसा है मुझे पता ही नहीं, और आपको जब पता होता है इसका टाइम ये खराब चल रहा है और ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो यू नो आप, वो डायमेंशन ही अलग हो जाता है हेल्प का। आप उसको गाइड पर बताइए यार ये प्रॉब्लम इतने दिन तक है और ये कर लेगा ना तो तेरे को आराम मिल जाएगा, और तेरे को जॉब जो है बस समझ लो 1-1.5 महीने की बात है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, इतने अपसेट डिप्रेस लोग आए, बताया कितने टाइम में मिल जाएगी, मिल गया, मिल गया, करा, इतने परेशान कि जैसे अब लगता है कि भाई मतलब कि एक हफ्ते के पैसे, और यूएस यूएस में तो बताइए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना आपके पास। अगर एक या बाहर कहीं भी किसी कंट्री में देख लीजिए, अगर आपके पास, आप अकेले हैं और पैसे नहीं है और जॉब नहीं है, निकाल दिया गया है, कुछ भी हो गया है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एक हफ्ते के पैसे हैं, कैसे होगा भाई, ये करो देखो मिलेगा जरूर, दिख रहा है कुछ ना कुछ, तो आप करो और हो जाता है। बड़ी बड़ी चमत्कारी चीज है। ऐसा नहीं कि आपके वाक सिद्धि अलग बात है, वो तो धीरे धीरे आप अगर सत्व अपना बढ़ाओगे तो वाक सिद्धि हो ही जाती है। एस्ट्रोलॉजर्स आर ब्लेस्ड टू बी, अगर आप अच्छी इंटेंशन से करते हो, अपनी क्रिया साधना ध्यान करते हो, अपनी चीजें अच्छे से करते हो, तो आपके पास वाक सिद्धि आ ही जाती है सुनो और लेटर। कैसा एग्जाम्पल भाई, पहले हमको बहुत अच्छे तो, छोटे में तो इतना अच्छा नहीं आता था, मतलब आता था हाथ पाथ देख के करके, पर इतना डेप्थ तो स्टडी नहीं था, धीरे धीरे लर्निंग होता है। तो या जब स्टार्ट कर रहे होते हैं आप चीजों को, तो चार्ट को देखे और देख के बोल दिया हाँ हाँ ये होगा, जॉब लग जाएगी। फिर जब पर डाउट रहता मन में यार लगेगी नहीं लगेगी क्या होगा, फिर चार्ट खोल के देखा, ठीक है, मतलब 20 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, 200 साल पहले की। तो देखा तो बोला अरे यार ये तो लग नहीं रहा, लगे ये तो गड़बड़ बोलते हैं उसको, अच्छा उसको कल बताएंगे भाई थोड़ा मुश्किल है ऐसे ऐसे करके। फिर बात हुई नहीं, कुछ हुई नहीं, अब बोला फिर या असमंजस में कि बोले नहीं बोले, पर वही ब्लेसिंग रही, वाक सिद्धि, बोला तो हो गया काम। बोलते अरे यार जॉब लग गई हमारी, तो हमारी तो जॉब हो गया। तो वो कोई मैं यूनिक नहीं हूँ या कोई और यूनिक नहीं है, वो सबको आ जाता है, क्योंकि आपको एक सर्टेन डिसिप्लिन थोड़ा फॉलो करना पड़ता है व्हेन यू आर एस्ट्रोलॉजर और यू आर ए टीचर और यू आर ए गाइड, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो आपके पास भी आता है। एक आध गलत भी कर दोगे ना तो वो भी सही हो जाता है। ये वाक सिद्धि है बेसिकली, कि आपके, और कई बार नोइंगली, देखो वैसे तो होता तो आप, मैं बता दूं, होता तो 99.99 ना, जो चार्ट में लिखा होता है वही होता है, जो चार्ट में लिखा होता है ना वही होता है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंट्यूशन का यूज करते हैं, तो इंट्यूशन कैसे यूज करते हैं वो भी हम बताते हैं, इंट्यूशन और एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। तो इंट्यूशन से जब चीजें होती हैं
तो चार्ट कई बार होते हैं भाई, मतलब अगर 100 चार्ट लो तो 5% चार्ट ऐसे होंगे जहां पर आपको इंट्यूशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज चार्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग, इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग व्हाट विल हैपन। तो जब इंट्यूशन यूज करते हैं, वो आपकी खुद की साधना, आपका खुद का तप, आपका खुद की चीजें, तो इंट्यूशन फिर आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो पहले मैंने कहा भाई आपका जीपीएस ऑफ लाइफ, विजडम, प्रोग्रेस फास्टर ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, क्योंकि कई लोगों का तो यही विषय होता है भाई एनलाइटमेंट कब होगा। मैं कहता हूँ देखो मालिक जब चाहेंगे ना तभी होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। अगर एनलाइटमेंट की इच्छा है, अगर मोक्ष की इच्छा है, तो उसको भी दे दो, ड्रॉप कर दो, तभी होगा। पकड़ के रखोगे तो नहीं होगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो आई वुड से ऑन द प्रोग्रेस फास्टर, विजडम इंक्रीज। फिर ऑल्टरनेटिव करियर पाथ तो है ही, नो डाउट, आप पैसे कमा ही सकते हैं इससे, अच्छे पैसे का। अगर यू आर ए गुड प्रेडिक्टर, इफ यू आर प्रेडिक्टिंग 80-90%, मैं कह रहा हूँ लोग लाइन लगा के आते हैं आपके पीछे, टाइम नहीं होता। और मैं तो मतलब पहले मैं ही कर रहा था, अब तो मेरे इतने स्टूडेंट्स हो गए, मतलब कई 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो अब मैं सबके लिए प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, जिसपे वो लोग आके अपना कंसल्टिंग करेंगे। और ये नाड़ी का एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म होगा, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर को वही होगा, क्योंकि वैदिक वाले नहीं कर पाते। आप कितना भी धुरंधर हो, मैं कह रहा हूँ 40 साल भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप 60-65% से ऊपर नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, मेरे वर्ड नहीं है कि भाई मैं अपने कुछ आगे बढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये तो बड़े उनके वर्ड्स बोल रहा हूँ। कई तो बोल रहे हैं 30% बोलते हैं, 40% बोलते हैं, तो नहीं ठीक है, 50-60% तक तो कर सकते। तो 30 साल 40 साल पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर हेल्प नहीं हो पाई दूसरे बंदे की। बोला कि भाई मेरा नौकरी कब लगेगा, मैं विदेश कब जाऊंगा, तो जवाब दिया पर गलत हो गया, या जवाब ही नहीं दे पाया। हमारे यहाँ तो बहुत क्लियर है, एटलीस्ट 95% केसेस में बहुत क्लियर आ जाता है कि भाई इस टाइम में, इस मंथ में उड़ जाओगे, या ये मिल जाएगा, या शादी हो जाएगी, या जॉब चली जाएगी, जो भी वॉट एवर इट इज, जो भी इवेंट, वॉट एवर। नेगेटिव तो क्यों बोल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हो जाती, एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू लर्न। देखो एस्ट्रोलॉजी जो पराशर में सिखाया जाता है ना, उसको तो 5 साल लोग पढ़ के आते हैं हमारे पास कई लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, 5 साल पढ़ के किसी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का नाम लेते हैं, बोलते हैं हम यहाँ से पढ़ा 5 साल, और प्रिडिक्शन करने नहीं आए। तो बोलते हमने 2 साल कोर्स किया, 8-8 महीने का, 6-6 महीने का, बेसिक किया एस्ट्रोलॉजी, फिर एडवांस किया, पर हमने कुछ पढ़ा पर प्रिडिक्शन समझ में, क्योंकि प्रिडिक्शन उसमें कर ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं। हमने खुद में भी देखा ना, खुद ऑब्जर्व, देखो हम जब तक, वही है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, है ना ऐसा फ्रेज। तो मतलब आप खुद करके देखो, खुद करके देखोगे तो समझ में आएगा। तो हमारे तो आई टेल यू, आई पास्ड आउट आफ्टर 2 years ऑफ वैदिक स्टडी, भारतीय विद्या भवन। मेरे को नहीं लगता कि मेरे शायद 150-200 के बैच में से शायद मुश्किल से 2 या 3 4, मे भी 2 या 3 शायद लोग एस्ट्रोलॉजी अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि लोग जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक बार 2 बार गलत हो जाए तो फिर छोड़ देते हैं, अरे नहीं हमारे बस का नहीं है, कुछ है या कहीं। बिकॉज जब तक आपको कोई चीज रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप एक्साइट नहीं होते, आप आगे काम करने को बढ़ते नहीं, यू डोंट गो अहेड विद द थिंग्स। आपको हमेशा कोई आएगा, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी में गालियां भी बहुत मिलती है, ठीक है। आपने गलत कर दिया तो आके सुना के तो जाएगा ही आपको, क्योंकि उसने तो थोड़ी दक्षिणा दी तो जरूर सुना के जाएगा, नहीं दी तो कोई बात नहीं, बोलेगा भाई तुम अच्छा नहीं करते। तो सुनने का तो काम होता है इसमें, अच्छा बुरा सब मिलता है, मालिक की दया से हमें कभी नहीं मिला टचवुड, क्योंकि हम जो होता है सत्य बोलते हैं, और इंटेंशन हमेशा हेल्प करने की होती है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, पर लोग जब शेयर करते थे फ्रेंड्स में, भाई क्यों है, क्योंकि ग्रुप बना रहता था ना सबका, भाई 200 लोग का बना हुआ है, तो कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा, बहुत कम, 2 4 10, मतलब 5% भी नहीं, एक तरह समझ लीजिए। तो चलो वो तो एक अलग बात है, पर अगर आपको ऐसा टूल मिल जाए जहां जहां आपको ऐसा टूल मिल जाए जहां आप लोगों को गाइड कर पाए, और काफी अच्छा 80-90% गाइड कर पाए अच्छे तरह। भाई 10 सवाल पूछे, 8 भी सही बता दिए तो बहुत बड़ी बात है।
राइट। 5 सवाल बता दे, 4 भी सही बता दिए, एक में उधर उधर नहीं बताया, बहुत बड़ी बात है। और 5 बता दिए तो नथिंग लाइक इट। वो तो आपकी प्रैक्टिस पे है बेसिकली। इसमें क्या, जैसे 6 महीने का कोर्स होता है, 2 घंटे में पढ़ाता हूँ। आई टीच 2 hours per week. It's a 6 months course, and I teach maybe more than 500 case studies, close to 500 case studies, 4 to 500. और इतना जब केस स्टडी करते हो ना, उसके बाद भी और बड़ा केस स्टडी करते हो इतना। व्हेन यू डू सो मेनी केस स्टडीज ना इन 6 months, यू बिकम लाइक रॉकेट। आपको प्रिडिक्शन में 4-5 महीने में कितनी देर में करना शुरू किया, तो मैं बोलता हूँ 5 मिनट में रीडिंग करो। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे ना, उसमें तो 1 दिन लगता है। पहले भाई दे दो डेट टाइम प्लेस, देखूंगा, समझूंगा, 10 तरह की चीजें, या 1 घंटे एनालाइज करेगा, तब करेगा। मतलब जो सीजनड हो गए, प्रैक्टिस हो गए, उनकी बात अलग है, वो फिर भी फास्ट कर ले। पर लोगों को 2-2, 3-3 दिन, एक एक दिन ऐसा बोलते हैं, हाँ ठीक है 2 दिन बाद अभी देखेंगे, तब करेंगे। और जब मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपकी रीडिंग हो जाती है 5 to 10 मिनट से, पूरा चार्ट आप पढ़ देते हैं, इतना फास्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा लगा तो 20 मिनट। किसी का भी क्वेश्चन आंसर आप करते हो ना, सपोज कोई बोला कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी, मेरे को नहीं लगता वो हमारे स्टूडेंट्स मेरे भी शायद 5 मिनट से ज्यादा लेते होंगे। 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 5 मिनट इज आई एम सेइंग 2 या 3 मिनट। मतलब आपके पास 4-5 ही सवाल होते हैं, अरे मेरी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, ये क्या, बाहर कब जाऊंगा। मतलब 15 मिनट में गेम खत्म। ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात के नहीं है। मेरे को 30 सेकंड लगते हैं कोई भी चार्ट देखने के लिए, मिनट भी नहीं लगता। फिर वो ठीक है, हम आधे घंटे का टाइम देते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, हो गया, प्यार से समझाया, रेमेडी समझाई, कुछ करा कुछ करा, वो था। 30 seconds आई नीड टू रीड। अच्छा, अच्छा, खोला, देखा, खत्म, पूछो क्वेश्चन। तो ऐसी कैपेबिलिटी मैं चाहता हूँ कि आप सब में हो। तो मैं तो बोल देता हूँ 4 महीने में खूब प्रैक्टिस, मतलब पूरा थ्योरी और सब प्रैक्टिकल वगैरह होता है। और फिर नेक्स्ट 2 months इज ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा। और चार्ट तो मेरे पास हजारों हजारों में, डाइवोर्स के चार्ट, मैरिज के चार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट, रोज ही आते हैं इतने सारे पूरी दुनिया से। तो सीखना चाहिए। और क्या है, सिर्फ इसमें नंबर्स हैं, है क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, क्यों इतनी एक्यूरेट है, क्योंकि ये इन डेप्थ है, नक्षत्र पे बेस्ड है, लॉर्ड्स पे बेस्ड है। तो नक्षत्र और लॉर्ड्स ऑफ प्लैनेट्स, मतलब वैदिक अगर एक लेवल है तो ये 2-3 लेवल डाउन पे करके आप कैलकुलेट करते हो और फिर बताते हो कि ये होगा। और एग्जैक्टली वैसा होता है। मतलब आप लोगों को खुद को विश्वास नहीं होगा जब आप बोलने लग जाओगे थोड़े दिन, अच्छा ऐसा हो गया क्या। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता था बहुत बार, अच्छा हो गया क्या। सब माया है पीछे की। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक, अब तो सालों हो गए, पता है ऐसे ही होना है। तो अच्छा, इसके अलावा क्या दिखाते हैं भाई, जैसे मुंडेन प्रिडिक्शन, जैसे मैं ट्विटर पे करता हूँ, सब लोग ट्विटर फॉलो करते हैं मेरा, कौन कौन करता है, हाथ वाथ उठा लो। रीमा पार्थिक, अरे भाई सब लोग खोल लो खिड़की अपनी। पार्थिक को सब लोग देखते हैं, फॉलो फॉलो करते हैं मेरा ट्विटर। अच्छा, मेरा फॉलो ना करो, करो ना करो बात की बात है, मालिक का जरूर फॉलो कर लेना, @श्री। जीवन तभी सफल होगा, नहीं तो अटके रह जाओगे यहीं 84 में। क्योंकि उनके जो विजडम आते हैं, उनके जो वर्ड्स आते हैं, उसको लाइक करो, उसको रिट्वीट करो, अपना कर्मा घटाओ। ये सीक्रेट पता है नहीं पता, एक लाइक 1 कर्मा घटेगा, एक रिट्वीट 2 कर्मा घटेगा। भाई नेगेटिव कर्मा और क्या चाहिए है। कोई भी तकलीफ हो तो सारे लाइक करना शुरू कर दो, रिट्वीट करना शुरू कर दो, देखो 24-48 घंटे में कुछ तो मिलेगा। अच्छा, पक्का रहिए, तो ट्राई करके देखो। और कल एक सीक्रेट बताया था मैंने सत्वा टॉक पे, आई डोंट नो सबने सुना है कि नहीं सुना, सुन लेना सत्वा टॉक, शेयर भी कर देना, बहुत पावरफुल सीक्रेट है। सत्वा टॉक सर्च कर देना, मेरा नाम लेके मिल जाएगा। तो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज है, और आपने नंबर देख रहे, 18 साल से ऊपर, मेरे ख्याल से 70 साल तक कोई भी सीख सकता है, 70 से ऊपर भी सीख सकता है अगर आपको इंटरेस्ट है तो, कोई बात नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। बट आफ्टर 18 एंड बियॉन्ड, कोई इसी की परमिशन मिली है पढ़ाने को तो इसी को पढ़ाएंगे।
कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज है, देखा, चेक किया, बता दिया ये होगा, और आपको खूब प्रैक्टिस दी जाती है, खूब केस स्टडीज दिखाई जाती है, खूब बताया जाता है मैच मेकिंग कैसे करना है। जैसे गुना से मैच मेकिंग होता है, गुना से मैच मेकिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू। मैं आपको इतनी सारी केस स्टडीज दिखा दूं, 500,000 तो दिखा ही सकता हूँ, जिसमें गुना मैच किया और गड़बड़ हो गया। अच्छा 32 28 गुना मिल रहे हैं, लड़ाई हो गई, डिवोर्स हो गया, ये सब हो गया, वो सब, राइट। तो मतलब आपके पास एक टूल आ जाता है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैप कर सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस भी लेनी चाहिए हमेशा, हर साल में एक बार लेनी चाहिए। भाई इतने पैसे खर्च करते हो आप लोग, जिसकी तानी काई शर्ट, कभी कुछ, कभी खाना पीना, तो अपनी लाइफ के लिए, अपनी गाइड के लिए क्यों नहीं खर्च करना चाहिए? खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। you'll get so much of return you can't imagine। कितने सारे लॉसेस से, कितनी सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। मैं तो, हमको तो फीडबैक मिलता है ना। तो हमेशा अपना ईयरली तो चार्ट पढ़ाना चाहिए। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक साल में पढ़वाना है, पढ़ा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ी चीज है, कोई कोई बड़ा डिसीजन है लाइफ का, शादी है, जो भी है, छोड़ना भी है, डिवोर्स भी है, कोई भी बड़ा डिसीजन है, नेगेटिव पॉजिटिव, कंसल्ट करना चाहिए। आप लोग खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि देखो लाइफ एंड डेस्टिनी अलग है चीज। वी ऑल्सो टॉक, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, आई टोटली बिलीव इन दैट, कि भाई आपकी हाइट जो है आपका डेस्टिनी है, आपका वेट जो है आपका फ्री विल है, राइट। तो कुछ चीज आपके हाथ में है, पर कुछ चीजें फिक्स है। जो फिक्स है ना, वो आपको ऐसे क्लियरली दिखेंगी ना, कि आप सोचोगे यार ये क्या है, मतलब लाइफ में तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, या बस है तो इतना ही है। क्योंकि आई डू वंडर दैट, मतलब जैसे टाइम निकला, एक डेट से दूसरी डेट में चाहिए, एक अंतरदशा से दूसरी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में चाहिए, वैसे ही वो इवेंट घटता है। जिसको हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल, जिसका ऑपरेशन ऑपरेशन, जिसको जॉब लगना है जॉब, जिसको उड़ना है उड़ गया, जिसकी शादी होनी है होगी। मतलब इतना एक्यूरेट होता है। आप डेट लिख के रखते हो, जब आप सीख लेते हो नाड़ी रिसर्च की ये चीज होगी। और मेरे को तो जिसने कंसल्ट किया होगा, आई एम नॉट श्योर कौन कौन लोग यहाँ पर हैं, तो मैं तो रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। अच्छा आप हैं, हाँ प्रियंका। तो प्रियंका ठीक बोलता हूँ कि नहीं बोलता? प्रिडिक्शन ठीक ठाक होती है, मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। हाँ? बिल्कुल सही बोलते हैं पंडित जी आप। चलो देखिए, चलो एक तो है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, हजारों हजारों में हैं लोग। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स डालूंगा, मैं इतना डालता नहीं हूँ साइड बाइट पे, क्या कर रहा है ये सब, जिसको आना होगा आ जाएगा। बट इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, इतने सारे ले लेता हूँ मैं, बोलता हूँ भाई अच्छा हुआ, आपको हुआ तो शेयर करिए लोगों को, ताकि विश्वास हो। क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं, लोगों को बहुत विश्वास भी नहीं है, और दूसरा एक जो भय एस्ट्रोलॉजी के प्रेरित क्रिएट कर रखा है ना, वो हमें दूर करना है। शायद इसलिए मैं आया एस्ट्रोलॉजी में। मेरे को लगता है कि एक बहुत डिफिकल्ट है, 10 जन्म लग जाएंगे उसको सीखने में। एक तो सीखने में डिफिकल्ट, ऊपर से एस्ट्रोलॉजी के पास जाने से डर लगता है। फिर अगर किसी की इंटेंशन अच्छी नहीं हुई तो 10 50 हजार लाख रुपए तो इधर उधर करा ही देते हैं, भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। आदमी बिल्कुल बेचारा दबा होता है और दब जाता है। और बहुत लोगों ने किया है, इतने सारे टीचर्स, स्वामी जी, सीईओ, सीटीओ, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने, अच्छे अच्छे लेवल के लोगों ने, और जो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी खूब किया और खूब अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। हाँ भाई देखो, आपके, आप इसको सीख के सब कर रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस ना करो तो ये आपकी जिम्मेवारी, ठीक है। पर हाँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहता है, मैं बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट मेरे को कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। कभी भी, जिसे कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई कोई भी क्वेश्चन मेरे को मैसेज कर दिया, टाइम टाइम थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है, बट ठीक है, मैं टाइम देता हूँ भाई, बात करो, या क्लासेस ले लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो वो सब रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है स्टूडेंट्स को। क्योंकि मेरे को सिर्फ कोर्स नहीं बढ़ाना, मेरे को आपको एस्ट्रोलॉजर बनाना है। दोनों में फर्क है। एक आपको एस्ट्रोलॉजर बनाना, और एक कोर्स टीच करना। कोर्स टीच किया, खत्म हुआ, आपने ठीक है, आ गया, फिर गुड फैक्टर कह लो, जो भी आपको आ गई, और आगे चले गए। तो इसलिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म भी एक लॉन्च जो होने का जल्दी से, उसमें भी है कि आप लोग आके उसमें लाइव हो सकते हो। उस प्लेटफॉर्म को इतना मैं फेमस कर दूंगा कि लोग आएंगे उस पर, और मैं क्या करूंगा, सॉरी मैं तो कुछ नहीं करता, मालिक करेंगे।
ठीक है, कभी कभी गलती का एहसास, गलती का यू नो गलती हो जाती है। देखो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, सो एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो ये कराना होगा तो ये करना, तो उससे क्या प्रैक्टिस ही बनती रहेगी आपकी। अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। एवरीथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, प्रेडिक्शन हो रही है मेरे थ्रू, ये कह सकता हूँ। मैं नहीं करता क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, इतना एक्यूरेसी से चीजें कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कहीं दया है, ग्रेस है, वो करा रही है। और जब आप सीखते हो एक टीचर के थ्रू, गाइड के थ्रू, तो वो आपका वही पास ऑन हो जाती है। भाई जिसके पास है वही दे सकता है ना, जिसके पास नहीं है वो क्या देगा। जो खुद 90, 95, 97 में खेल रहा है, कूद रहा है, वही आपको सिखा सकता है। भाई जो 50-60 में, वो तो नहीं सिखाएगा ना आपको। और उसको पता है कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, तो तभी सीख पाएगा। तो बहुत ईजी है सीखना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जिसको बेसिक्स, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी सीख सकता है। पर जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको जल्दी से 1-2 दिन में रजिस्टर कर देना चाहिए। आज तारीख हो गई 8, 1-2 दिन में रजिस्टर कर देगा तो 2-4 घंटे का वीडियो है बेसिक का, वो सुन लेगा। और उसके बाद 16 तारीख से नाड़ी का कोर्स है, 16 जुलाई से। क्योंकि थोड़े 2-4 घंटे का बेसिक्स आना चाहिए। और कुछ डाउट है तो मैं कंटेंट देता हूँ, वीडियो है, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बहुत ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। On everybody can learn, everybody at above 18 and above can learn. मैं तो 12 साल से ऊपर भी पढ़ा दूं उनको, पर अभी 12 साल बहुत छोटा हो जाता है। तो 18 साल से at any age you can learn astrology and I think you must learn. सबको सीखना चाहिए। अच्छा, फीस की बात करूं, लास्ट नॉट द लीस्ट, फीस इसकी 60,000, 61,000, 775 USD, जो यूएस में रहते हैं। अगर आपने बेसिक करा हुआ है तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है आपको, ठीक है, अगर आपको बेसिक आता है तो। नहीं आता तो फिर आपके लिए 61,000 है। और आप बिल्कुल जीरो से एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ जीरो से हीरो, आपको जीरो से हीरो बना दिया जाता है, एकदम सुपर एक्सपर्ट। क्योंकि मेहनत करने से ही होता है, और मैं मेहनत कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, आपको भी कराता हूँ। चार्ट 10-10, 5-5, 20-20 चार्ट जब प्रैक्टिस करते तो 2 घंटे के सेशन में हम करते हैं 10 चार्ट, 12 चार्ट, 15 चार्ट, 20 चार्ट, कभी और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इतने तो होते ही हैं। तो ये धीरे धीरे आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट लोग तो 3 महीने में ही बहुत अच्छा प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं, 2.5 से 3 महीने में। तो आप बताइए, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। आई थिंक दैट इज गुड एनफ, राइट। टाइम भी वैसे तो अभी टाइम है थोड़ा सा, बट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई पंडित जी, क्वेश्चन? आप कहाँ से सीखे? मैं कहाँ से सीखा, ये तो सीक्रेट है। देखो मैं बहुत लोगों से सीखा, मैं इसका क्रेडिट ना अपने फादर को और अपने गुरु को देता हूँ। ऑनेस्टली तो बहुत जगह से सीखा भाई, भारतीय विद्यावन भी गया, और भी 10 जगह पढ़ी चीजें, कितने लोगों से क्या क्या सीखा। बट अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो गुरुदेव को दूंगा। अपने माता पिता को वो संस्कार मिला मुझे बचपन से, और गुरुदेव को, क्योंकि मालिक ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना जिसके मेरे पास आंसर नहीं थे। तो जब तक, और उनका पर्पस ही होता है कि आपको सिखाया ना, आपको बताना। वो हमेशा, मैं कितनी तैयारी करके जाता था, हमेशा वो क्वेश्चन पूछते थे जो मेरे को आता ही नहीं था। तो अच्छा ये भी करना है, ये भी है, निकालना है, कैसे निकालूं समझ में नहीं आते, रिसर्च करते थे। तो ये तो मालिक ने मेरे ख्याल से उंगली पकड़ पकड़ के सिखाया है। मैं तो ये कहूंगा कि आप सीखते तभी हो। भाई सूत्र पढ़ना तो इंटरनेट में खोज लोगे, 10 चीजें देख लोगे। आजकल तो यूट्यूब और ऑनलाइन का जमाना है, कहीं भी आपको 50 चीजें मिल जाएंगी, जोड़ तोड़ के करने लग जाओगे। पर उससे वो ज्ञान नहीं आएगा जिसमें आप 95% पहुंच जाओ, 97% पहुंच जाओ, वो नहीं आने वाला। वो एक्यूरेसी नहीं आई, वो तो कोई गुरु की दया होगी, कृपा होगी। और तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे,
और मेरे को और ऐसे टॉपिक जो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को लगता है अरे बाप रे, ये तो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और अब मालिक ने पूछा है तो भाई बोलना पड़े। अच्छा, उनको थोड़ी कुछ जानना है, वो तो सब जानते हैं, वो तो हजारों हजारों यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन एक टाइम में, एक सेकंड में प्रोसेस कर देते हैं। उनको क्या जानना है? उनको कुछ नहीं जानना, वो हमको मोटिवेट करे कि हम सीखें, हम आगे बढ़े, हमें पता होना चाहिए। चेक टेस्ट लेते रहते थे, तो जब बहुत सारे टेस्ट दिए ना तो अपने आप परफेक्शन आनी शुरू हो गई। तो ये बेसिकली देखो, माध्यम तो बहुत है, बहुत सारे टीचर से सीखे। मतलब आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े लोग भी होंगे, बड़े बड़े नाम भी होंगे, बट आई वुड से दिस, अगर एस्ट्रोलॉजी मैं आज यहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, जो भी प्रसिद्धि सिद्धि मिली, वो सिर्फ गुरुदेव की वजह से। ऑब्वियसली पेरेंट्स की ब्लेसिंग रही, माँ बाप की ब्लेसिंग रही, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी की जब जर्नी सीखते हो ना, तो बहुत लोगों से सीखते हो, सिर्फ एक से नहीं सीखते। ठीक है, तो एक का नाम लेना थोड़ा अनुचित हो जाएगा, फिर तो मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये इतने सारे हैं इन्होंने। और बहुत लोग ऑथर रहे हैं, बुक्स के ऑथर रहे हैं, बहुत लोग इंस्टीट्यूशंस के हेड रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं। तो और मेरे को लगता है वो सबका मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से पढ़ा, और वो सारा कल्मिनेशन मैं आपको दे पा रहा हूँ, तो मेरा दे पाऊंगा और दे पा रहा हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि उस चीज को गुरुदेव ने जाना और मुझे मोटिवेट किया और मुझे बोला, और मैंने उनकी बात, मैं तो ये समझ लिया था भाई गुरु आ गया है तो सब कुछ भी छोड़ना पड़े, भाई छोड़ना पड़े, करना पड़े तो करना है। अगर गुरु ने बोल दिया है तो चाहे लाइफ छूटे, चाहे संग छूटे, चाहे कुछ भी छूटे, वो करना है। ये बचपन से सीखा था, और इसी से कल्याण होता है आपका, यही सूत्र है। गुरु के आदेश पे चलना, गुरु की बात पे चलना, गुरु के ज्ञान पे चलना, तभी लाइफ आपकी सफल होती है। तो या ऑल क्रेडिट गोज टू गुरुदेव, आई वुड से। बढ़िया। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ जी, कि मैं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी? हाँ जी, मैं हाँ अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव पंडित जी। जय गुरुदेव, मुझे बताइए। एस्ट्रोलॉजी का कुछ एबीसीडी नहीं आता, सिर्फ कुंडली का। हाँ बिल्कुल, यू आर परफेक्ट कैंडिडेट। जिसको एबीसीडी भी नहीं आता ना, वो मेरे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको कितने सारे लोग मिला दूं, बात करा दूं, वो बोलते थे अरे मैं सीख भी पाऊंगी क्या? मैंने कहा काउंटिंग आती है ना 1 से 10 तक, बस इतनी चाहिए मेरे को। अगर काउंटिंग आती है 1 से 10 तक तो सीख जाओगे। हाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि 1 क्लास की 3 क्लास नहीं की, ऐसा नहीं चलेगा। हर क्लास को अटेंड करिए। आप 3 महीने में देखो कैसे, अगर कोई रीजन की वजह से छूट भी गया तो वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती है। यू कैन वॉच एंड बी ऑन द पेज। कोई काम आ गया अर्जेंट, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बट क्लासेस अगर सारी करेंगे तो ऐसा है ही नहीं कि आप 3 महीने में आपको ऐसा चमक जाएंगे आप जो सोच नहीं सकते, जो सोचा नहीं होगा कि यार अच्छा ऐसा भी बता पाऊंगा। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होता है, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाता है, पर आप समझिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिएगा, क्योंकि फिर वैदिक का थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना होगा, 2 4 5 घंटे देने होंगे, तो वो कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ना कि can I learn astrology or can I become an astrologer? Yes, you can. If your interest is there, if you are committed, you can. कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे हमेशा क्लास करनी है, और जो बोला जाए थोड़ा बहुत ही होमवर्क दे। देखो आपको कितना, और हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड, 2 घंटे क्लास में हफ्ते में, उसके बाद पूरे हफ्ते में मेरे ख्याल से 1 घंटा भी दे दोगे ना, आधा से 1 घंटा, बहुत टाइट है तो आधा घंटा, तो 1 घंटा भी दे दोगे ना, बहुत। पूरे हफ्ते में 1 घंटा मांगता हूँ, इतना भी दे दोगे ना शुरू में 3 4 महीने 3 महीने, तो बहुत सीख जाओ। उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस बढ़ाता हूँ भाई, रोज कर लो, आधा घंटा दे दो, या 15 मिनट दे दो रोज, या फिर हफ्ते में 2 घंटा दे दो, तो ऐसे करो। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के, सारा घर का काम ऑफिस का काम छोड़ के एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो जरूरत ही नहीं। जस्ट अटेंड द क्लास, क्योंकि प्रैक्टिस में मुझे मालूम है ना, लोग नहीं कर पाते आजकल, लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम है, बहुत कमिटमेंट है, तो मैं क्लास में ही बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ, और फिर थोड़ा बहुत होमवर्क देता हूँ, आपको वापस स्कूल में पहुंचा देता हूँ। तो करिए आप, जिसका भी इंटरेस्ट है। मेरा फ़ोन नंबर आप सबको पता ही है, ट्विटर में सबके पास है ही, नहीं तो यहाँ डाल ही देता हूँ।
आपको पता चल जाएगा। 9810227498 है और इस पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे। तो जो भी सीखे हैं उनको आता है, जो करते हैं। प्रियंका तुमने सीखा है क्या? प्रियंका सेठी, तो मेरे को मैं देख नहीं पा रहा, प्रियंका सेठी न्यू है या जो मेरे से सीखी हुई है वही है? प्रियंका अनम्यूट करके बोलोगी? अभी तुम्हारे दांत में कुछ बोल रही थी, कुछ है, बोल पाओगी नहीं बोल पाओगी? तो मेरी एक स्टूडेंट का नाम प्रियंका सेठी था, तो उससे सीखा था। आई जस्ट वांटेड टू सी वही है कि कोई और है। तो वो कोई और है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई जवाब नहीं आया तो मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सीखिए, जिसको भी इंटरेस्ट है मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए। मेरा ट्विटर पे नंबर पड़ा हुआ है, अभी मैंने बोल भी दिया आपको। तो यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, एवरीबडी कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअली एवरीबडी एंड एनीबडी कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी। ये नहीं कि आपके चार्ट में विशेष कॉम्बिनेशन हो गए तो आप पढ़ सकते हो। मैं कह रहा हूँ आपको अगर कुछ भी नहीं करना यार, एक विद्या तो लोगे आप ना। अगर आपको सपोज एज ए प्रोफेशन, ही बोलता है मैं प्रोफेशन नहीं बनाना, नहीं बनाओ, कोई जरूरी नहीं, आप सेवा करो। आप अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, सबका गाइड तो बन सकते हो। अब किसी ने लिखा है वीडियस साइड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, किसने लिखा है कुछ? भाई आप जिसकी जहां मर्जी सीखे, मैं तो मना नहीं कर रहा, मेरी प्राइसिंग अपनी है, उनकी प्राइसिंग, ठीक है। मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आपको किससे सीखना है, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। डिफरेंस तो अब आप गूगल करें करें खुद रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है? हम आपको कुछ नहीं बताने वाले, ठीक है। मेरे, क्योंकि मेरा बोलना ना बायसनेस हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में। जो जिसमें भी करें, क्योंकि मैं मीडिया से भी एसोसिएटेड हूँ, मैं आराम अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूंगा कहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बट समझदार को इशारा काफी, जिसको जहाँ जो इंटेलिजेंट होगा वो उसको चूज कर लेना है, उसको कहाँ जाना है, ठीक है। तो उदित बोल रहा है कि फीस पहले ये था अभी इतना हो गया। उदित अगले अगले 1 साल बाद ही 1 लाख हो जाएगा, इसलिए जल्दी सीख ले। 2 साल से सोच रहा है, ठीक है। अरे तेरा 1 लाख रुपए लगाएगा भी ना, 6 महीने के अंदर डबल आ जाएगा वापस। मैं कोर्स करने के बाद बोलता हूँ 6 महीने बाद यू हैव टू मिनिमम चार्ज 3100। आप अगर 1-2 महीना और प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस करो, उसके बाद 3100 से नीचे चार्ज ही मत करो, मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज आपके पास दौड़ दौड़ के लोग आएंगे, मैं कह रहा हूँ। एक बार आपकी प्रेडिक्शन आ गई तो इट गिव्स यू। आपने 4 चार्ट भी देख लिए, तो 5 चार्ट भी देख लिए, कितना टाइम लगा? कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। 3-4 भी अगर आपने सपोज 3-4 बहुत ज्यादा, 2 चार्ट भी देख ली, 60 चार्ट, 60 × 60 या 80, 1.5 लाख तो रुपया आपका हर महीने का आ गया। अगर 20 दिन भी किया तो बहुत आ गया, 1,20,000 रुपये आ गया। हमने सिखाया, हमने देखा लोगों को, लोग कोर्स के तुरंत बाद करीब 80-90 हजार तक करने लग गए, कम से कम। और ये बिल्कुल ट्रू जिसे कहते हैं। अब ये कि आप अपनी पोजीशनिंग कैसे करते हैं। अब कोई आता है 101 रुपए में कर दो, तो भाई तुम्हारी गलती है ना। 100 रुपए में करो, 500 रुपए में करो, नहीं करना। मैं किसी को, अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ डोंट चार्ज लेस देन 3100। मैंने जब कई साल पहले शुरू किया था, मैंने भी बिल्कुल, मैं आई थिंक आई एम द, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई एम यू नो आई चार्ज लेस, आई चार्ज वेरी डिसेंट अमाउंट। तो वो एक्सचेंज एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा अपने फायदे के लिए नहीं लेना आपको, उसमें से कुछ देना भी है, कुछ करना भी है, कुछ अच्छे काम में भी लगाना है, तभी चीजें बरकत होती है, तभी चीजें बढ़ती हैं। तो ऐसे कि आप अगर, जैसे मैंने बताया ना, कि अगर आप पार्ट टाइम हो तो 50% तक आप डोनेट करो, अगर फुल टाइम हो एस्ट्रोलॉजी तो कम से कम 20% करना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ना थोड़ा सा है कि
आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कर्मा एक्सचेंज बहुत होता है इसमें, इसलिए पैसे लेना भी जरूरी है और उसको सही जगह लगाना भी जरूरी है, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं। सिर्फ फायदे को करोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत कर्मा एक्सचेंज होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, गुरु के आशीर्वाद से कर रहे हैं, गुरु की ब्लेसिंग से कर रहे हैं, बट डोनेट करना बहुत जरूरी। आप 50% डोनेट करिए, देखिए आप बस लाइन लगती नहीं, क्योंकि भाई भेजते तो वही है, मुझे मालूम है भेजते तो वही है। और मैं तो एक बार मैं मालिक के पास गया, मैं बोला मालिक क्या, अगर मालिक आपका जो है जिसका भी अच्छा टाइम आने वाला होता है वो जो है आके मेरे को पत्री दिखाने लग जाता है, देखो नाम मेरा होता है, काम आप कर रहे होते हैं। बस जिसका है भाई, और ऐसा ही होता है, 99% ऐसा ही होता है कि जिसका ठीक है, कुछ लोगों का वो भी आता है, पर somehow कि आई गेट अ चार्ट और आई गेट द पीपल whose गुड टाइम इज अबाउट टू स्टार्ट, और कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो करता है उसको मिलता है, तो भाई मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, वो तो वो भेज रहे हैं, यश मेरा बढ़ रहा है, वो तो मालिक की दिया है ना। नहीं तो ऐसे आदमी भेजे सारे खराब खराब, जिनका कुछ खराब ही होना है तो गालियां भी देंगे, क्या बात है, आप यश भी होगा, यश अपयश दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, तो देखिए आज आप, मेरे को नहीं लगता आपको कोई एस्ट्रोलॉजर मिलेगा जो ये बोलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स 80-90%, को मिलेगा ही नहीं मेरे को, मैं तो देखा नहीं, अगर कोई हो तो मेरे को प्लीज भेजिएगा जरा, जो पढ़ाता और बोलता हो कि स्टूडेंट मेरे 80-90% प्रेडिक्शन कर सकते हैं, करते हैं, कर नहीं सकते, करते हैं एक्यूरेट। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। कोई पहली बार पढ़ा रहा है, पहली चीज शुरू कर रहा है, कोई कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका है, उसको सब मालूम है कैसे प्लस माइनस करना है, क्या करना है, बहुत फर्क पड़ता है। और देखो यहाँ पर तो शुरुआत मैंने ही की ना, सारी जो चीजें हैं ना ग्लोबल पे ले जाने की, फिर ठीक है लोग कर रहे हैं, सिखाया है लोगों को, करो, अच्छी बात है, करो। मेरा पर्पज है मेरे जैसे 90-95% प्रिडिक्शन करने वाले हजारों 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 लोग हो जाए, लाखों हो जाए, ताकि लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए। अगर आप अभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की परसेंटेज देखो तो 0.0001% होगी, मतलब परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ही कम है दुनिया में। तो इसलिए पढ़ाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट किया, अवेयरनेस अच्छी, देखो लोग आएंगे, लोगों को गाइडेंस सही मिलेगी तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, तो ये एंशिएंट जो चीज़ है ना ये बढ़ेगी आगे, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे को तो पूरे देश को सिखाना है, नेक्स्ट ईयर यूएस का प्लान है, फिर और सब कंट्रीज का प्लान होगा, तो वहां जाके इन पर्सन भी सिखाएंगे। तो ये तो बहुत लंबा है, तो चलेगा। ठीक है, फीस थोड़ी कम होती तो अच्छा होता, आई हैव लर्न। देखिए अगर कोई आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, आप मेरे से अलग से बात करिएगा फोन पे, विल सी व्हाट आई कैन डू, बट सब पेमेंट जो है अपफ्रंट होती है, क्योंकि एक बार आप पैसे देते हैं ना तो आपकी कमिटमेंट हो जाती है, फिर आप करते हैं, नहीं तो इधर उधर करते हैं। ठीक है, कमिटमेंट देना बहुत जरूरी है। नहीं, आपकी मर्जी, आप नहीं चार्ज करना चाहते हैं नहीं चार्ज करें, मैंने कहा ना आप सेवा का यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप फ्री में कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट अगर आपको प्रोफेशनल करना है, देखो बात बताऊं कि अब मनी क्यों आती है, सुदर्शन क्रिया हम क्यों फ्री में नहीं देते। आई थिंक अगर कुछ टीचर्स होंगे, कुछ लोग होंगे तो समझ में आएगा उन लोग को, या कोई भी अच्छी चीज हम क्यों फ्री में नहीं देते, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं कर पाता आदमी। आप फ्री में एडवाइस देंगे ना, बंदा वो करेगा नहीं और आपकी प्रिडिक्शन सही होगी नहीं, क्योंकि आप बहुत चीजों को इवेलुएट करके करते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा, ये कर लेना। तो जब तक उसकी जेब में से पिंच नहीं होगा ना, उसको पैसा नहीं लगेगा, कोई नहीं सुनता जी। आप फ्री में करके देख लो, मैंने तो ये देखा है कि जो मैं फ्री में प्रेडिक्शन करता हूँ वो सही नहीं होती, मेरा तो ये लर्न एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने तो करनी बंद कर दी। मैंने कहा भाई अगर तेरे पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो कमिटमेंट कर दे कम से कम। क्या आज तेरे पास भिखारियों वाली हालत है, पैसे बिल्कुल नहीं है, कर दे कि जब होंगे पैसे तब दे दूंगा, और लोग आते हैं देते हैं, लोग ऑनेस्ट, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन है सबकी, क्योंकि जब तक आप कुछ लोगे नहीं ना तब तक फल नहीं मिलेगा, वो फॉलो नहीं करेगा आपकी चीज।
तो इसलिए फ्री में करना कर सकते हो, पर फायदा नहीं होगा। आप उसको भी, उसका भी नुकसान कर रहे हो, अपना भी नुकसान कर रहे हो, दो तरफ से नुकसान कर रहे हो। इसलिए फ्री में नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखो सब लोगों का अलग अलग मानना होता है, मैंने तो ये देखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, यही सुना है, यही समझा है, यही गाइडेंस मिली है कि फ्री में नहीं, कुछ कर लेना चाहिए। हाँ जिसकी मजबूरी है वो अलग बात है। लोग, आपको मालूम है एस्ट्रोलॉजी में लोग कितना कितना पैसे लेते हैं, कोई 25,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, और देने वाले भी लोग हैं, हाँ पैसे वाले भी हैं। और उनकी प्रिडिक्शन भी 50-60% होती है, ऐसे सोचो। तो आप जब सही वाले बनोगे तो आप एक डिसेंट अमाउंट, 3100 तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। आप जाके डिनर करके आओ ना बाहर जाके, 2-2,500 रुपए से नीचे बिल आएगा क्या? फैमिली के साथ जाओगे, ज्यादा ही आएगा। आप एक किसी बंदे का पूरा लाइफ का, पूरे साल का बता रहे हो, तो 3100 रुपए बता दो मेरे पास, कम है क्या? ये ज्यादा है क्या? बहुत कम है, मैं कह रहा हूँ 11,000 रुपए चार्ज करना चाहिए। आप किसी का लाइफ का बता रहे हो, इतने सारे इवेंट बता रहे हो, इतनी सारी चीजें बता रहे हो, और उसको फायदा होने वाला है, उसको लाखों का फायदा होने वाला है। तो पैसा थोड़ा लेना बनता है। और हाँ, आपने पैसा लिया तो मैंने जो बोला ना, 50-20 का रेशियो होना चाहिए। 50 दिया, इधर किया, सब किया। अच्छा प्रियंका, तुम ही हो क्या? जय गुरुदेव, डन द लास्ट ईयर एंड एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए सब अच्छा, थैंक यू प्रियंका। एक्चुअली उनके दांत में कुछ था, तो वो शायद कर नहीं पाएंगे। तो थैंक यू प्रियंका फॉर कमिंग एंड शेयरिंग। तो लिखा है ना प्रियंका ने कि भाई जो जो भैया बोल रहे हैं वो ट्रू है। पढ़ लिया क्या सबने? पढ़ लेना। I have done this course with Bhaiya last year. Whatever Bhaiya is saying in the session is absolutely true. You won't feel like missing in a single class. You will learn so much of course that you will. You will base कि ऐसा भी होता है। Very true. प्रियंका मेरे को व्हाट्सएप में भेजना ये मैसेज, ठीक है? 2 to 4 क्लासेस में यू विल बी रीडेबल टू रीड। सो 2 से 4 क्लास, सोचो 2 से 4 क्लास क्या, 1 महीना 1.5 महीना नहीं हुआ। तो ये देखो, ये स्टूडेंट का फीडबैक है। मैंने नहीं बोला था प्रियंका को मेरी टॉक में आना, कोई प्लान्ड इवेंट नहीं है या ये बोलना, ये उसने बोला, अच्छी बात है। थैंक यू प्रियंका। दिस 2 से 4 क्लासेस कोई होता है? यहाँ लोग साल 1.5 साल पढ़ते हैं पर प्रिडिक्शन नहीं आती। यहाँ सिर्फ 4 क्लास, 2 से 4 क्लास में आपको प्रिडिक्शन आती है। सोचो, कुछ तो मैजिक है, कुछ तो जादू है। तो जादू सीखना है तो ज्वाइन कर लेना मेरी क्लास। समझ में आ रहा है? एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक अब हो गया, टाइम हो गया। तो आप पंडित जी, मुझे बस ये जानना था कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो नाम है ना, ये आप क्या नाड़ी एक्सेस करते हैं या? गुड क्वेश्चन, मैं समझ गया। कोई नहीं, क्या आप हाथ का नाड़ी देखते हैं, क्या देखते हैं? तो इसका नाड़ी देखो, 2 तरह की नाड़ी होती है। एक्चुअली 3 तरह की होती है। तीसरी वाली तो कहूँगा डॉक्टर करता है, वो नहीं करना है, वो डॉक्टर वाला काम छोड़ दीजिए। मैं भी वैसे होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। तो वो नहीं, उसको छोड़ दी, वो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। बट इसने नाड़ी सीखा हो, पर ये नाड़ी जो कोर्स है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, 2 तरह की नाड़ियां होती हैं। एक अगस्त नाड़ी, एक अगस्त ऋषि के लीनिएज में आती है, और एक भृगु ऋषि के लीनिएज में आती है। ठीक है? वैसे नाड़ियां कई तरह की, 50-100 तरह की, 150 तरह की से ऊपर नाड़ियां, ध्रुव नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, ये नाड़ी, वो नाड़ी। ये जो नाड़ी है, ये नाड़ी नक्षत्र है। इसमें नक्षत्रों की नब्ज समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। नक्षत्र क्या बोल रहे हैं उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं, नक्षत्र और उनके स्वामी। सिर्फ वैदिक में आउटकमिंग क्या है कि वो सिर्फ प्लैनेट के बेस पे करते हैं, जबकि जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो सोर्स है, वो नक्षत्र है। प्लैनेट जो बोलेगा वो ट्रू नहीं होता, पर जो नक्षत्र बोलेगा वही ट्रू होगा। जैसे घर में होता क्या है, जो बीवी बोलती है, हस्बैंड की चलती है क्या? नहीं चलती, होता तो अल्टीमेटली वही है। ऐसे ही भाई कॉस्मोस में होता वही है जो नक्षत्र बोलते हैं, उनके लॉर्ड्स बोलते हैं, प्लैनेट के बोलने से नहीं होता। तो ये नक्षत्र नाड़ी है, इसमें आप डीप जाते हैं, एनर्जी को एनालाइज करते हैं और फिर प्रेडिक्शन करते हैं।
तो बहुत इजी है, सीखिए। अब आपको तो लाइव यहाँ पर मिल ही गया, बता ही दिया प्रियंका जी ने, जो लास्ट ईयर सीखा था। तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप सोचते हैं, अमेज हो जाते हैं। पर हाँ, प्रैक्टिस काफी चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस में करना सिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, आपको दुनिया में कोई ये जगह नहीं मिलेगी, कोई एस्ट्रोलॉजर ही नहीं मिलेगा, और ये मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ, कोई आपको कराए तो बताए, जो आपको 6 महीने में 400-500 चार्ट कराता हो। और अभी तो मैंने और टारगेट बढ़ा दिया है कि और ज्यादा होने चाहिए। और इसके बाद आप शायद जब तक आएंगे तब तक तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएगा, जिसमें आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो इसको पूरा बहुत बड़ा बनाना है, इसको बहुत बड़ा बनाना है, इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड। ठीक है, तो आप लोग जब जुड़ेंगे तो आप लोग उस पर कर पाएंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, लोग जुड़ेंगे, लोगों को गाइड कर पाएंगे। तो ये बहुत लंबा प्लान है जिसको करना है हमें। और ये एक नहीं, पूरे वर्ल्ड में जोड़ना है। देखो अभी 20 है, हो सकता है आने वाले 17 लोग जुड़े हैं, 20 लोग जुड़े हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे। तो ये हजारों हजारों लोगों तक जाना है। और अब फॉर्चुनेट है, आप लोगों ने देख लिया, इसको ज्यादा मैंने प्रमोट भी नहीं किया था। तो जो आ गया वो फॉर्चुनेट है, मैं कहूँगा, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी लिमिटेड है। तो जिसका हो गया उसका हो गया, नहीं तो आगे फिर 3-4 महीने बाद देखा जाए। तो ऐसा है। तो जिसका मन है रीच आउट कर लेगा, मैंने नंबर बता ही दिया है। और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? इजी है। अगर संशय हो कि मैं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी, तो जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, अगर संशय हो तो जरूर ज्वाइन करना। बस आपका संकल्प स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, सिखाना मेरा काम है। ठीक है, मालिक ने ऐसा बना दिया है कि बिना सीखे तो कोई जा ही नहीं सकता, उनका ब्लेसिंग ऐसा है। देखो उन्हीं की ब्लेसिंग है पढ़ाने की, तो हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो पढ़ाना इज द टफेस्ट जॉब। प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान काम है, मैं कह रहा हूँ। पढ़ाना ना, आंसर करना, बताना, और फिर उसमें आपको हजारों लोग वैदिक वाले मिलेंगे, तो उनको भी डील करना, उनकी नॉलेज भी होना, उनको भी बताना कि वो कहाँ गलत है। अगर कोई पूछता है तो आपको लोग चैलेंज करेंगे, ऐसी बात नहीं है, अरे ये सही है वो सही। तो हम तो लोग खुद आके बोलते हैं, हाँ जी आपने बोला था ये हो गया। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, बाकी सबकी बात छोड़िए। तो ऐसा है। भैया कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए नवीन जी, बिल्कुल। अभी एक्चुअली क्या है कि आपने जैसे बोला ना कि जो यहाँ आए हैं मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। हाँ हाँ। तो मैं अभी 1 घंटे पहले, इस सेशन से 1 घंटे पहले जस्ट मैं मेट्रो में, कल का जो आपका 7वां टॉक था वो सडनली मेरे यूट्यूब पे आ गया, और फिर मैंने वो 7वां टॉक सुना। फिर जो आपने एक सीक्रेट बताया था जय गुरुदेव वाला, वो किया, और मेरे पास कॉल आ गया विद इन 5 मिनट्स। वाह, क्या बात अमेजिंग, अमेजिंग। मैं फिर मेरे को नहीं पता था आज आपका ये सेशन है। हाँ हाँ मैंने उसके बाद आपको व्हाट्सएप मैसेज डाला कि आई वांट टू टॉक टू यू एंड आई वांट टू लर्न दिस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। हाँ और हाँ। आपका उसी वक्त मैसेज आया कि यू आर गोइंग लाइव। अच्छा। मतलब विद इन ए मिनट यू वेंट लाइव एंड आई जॉइंड दिस क्या बात, सेशन। वेरी तो नाइस। मतलब मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं ऐसा कुछ ये आपके साथ उनकी अभी। प्लानिंग है और किसी की प्लानिंग नहीं, ये उनकी प्लानिंग है। जिसने ज्वाइन करना है, जिसको सीखना है, ये उनकी प्लानिंग है। तो तो मेरे वेरी साथ गुड। तो आज बड़े सारे कोइंसिडेंस हो गए हैं। पहला आपका वो एस्ट्रो टॉक वाला, ये 7वां टॉक वाला वीडियो देखना, फिर उसके बाद मेरा एक काम था जो जिसके लिए मैं पिछले कुछ दिनों से चाह रहा था कि हो जाए, फिर एंड आई डिड एवरीथिंग पॉसिबल, बट फिर क्या आपका वो वीडियो बात है, क्या देखा। बात है, फिर वो 5 मिनट बाद फोन आ गया अपने आप क्या कि जी बात ठीक है। है, मैं आपका कुछ तो सिद्धि मिल मतलब गई है आपको, इसका मतलब सिद्धि मिल गई है मतलब वो आपको। तो मेरे लिए मैजिकल मोमेंट था। वो तो जब वो फोन आया ना अपने आप चल के कि जी आई वाज लुकिंग फॉर सम प्लेस, मेरे को सुंदरकांड का पाठ कराना था, समझ गया, समझ और वो मैं पिछले 2-3 दिन से ढूंढ रहा था, नहीं मिला, कई लोगों को बोला, कुछ जगह नहीं मिली, और सडनली किसी एक का फोन आ गया, अच्छा वहाँ पे है, मैं आई विल चेक फॉर यू। गया। क्या बात, तो बहुत बढ़िया।
नहीं होते हैं, सारे काम होते हैं जी। देख मैंने कहा ना, मैं तो कल बोला ना, मैंने तो लाखों जगह यूज किया, लाखों लाखों, अनलिमिटेड, मतलब काउंटिंग नहीं होगी, कभी फेल नहीं हुआ। बट जो कंडीशन है वो करनी है, तो जो जिन्होंने नहीं सुना वो सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ हाँ कंडीशन उसको मतलब फॉलो करिए। आई आई विल रिकमेंड एवरीवन, जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखें और शेयर करें। किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, किसी ग्रुप में आया था, मैंने क्लिक किया तो मतलब आई वाज अमेज्ड, यू नो। ग्रेट, अरे सब उनकी माया है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो खाली हैं, वहां से आता है पास कर देते हैं। ठीक है, तो गुड, गुड वेरी गुड गुड, गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। पंडित जी सेम एक्सपीरियंस मेरा भी यही है। जो अच्छा, नवीन बोला, सुबह मैं ऐसे ही यूट्यूब देखने शुरू किया मोबाइल, तो मुझे पहला सतवा टॉक आया अपने आप। हाँ, मैं कभी सतवा टॉक नहीं देखती, तो मैंने वो सुना आपका, फिर मैंने वो सब देखा, वो नंबर आपने बोला वो सब मैंने देखा वो सब, वाह, और आपने जो जो मुझे अच्छा लगा मैंने फिर पूरे फैमिली को शेयर किया आपका वीडियो। तब वेरी सुनो, नाइस। तो जब तकलीफ आती तो 5 बार जय गुरुदेव बोलना, ये वो आपने जो बोला वो सब मैंने सबको शेयर किया। और उसके बाद मैं ऐसे बैठी थी, शाम को अभी आपको मैंने 2 मिनट पहले कॉल किया, मेरे मन में आया चलो पंडित जी से बात करते, फ्री होंगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं। तो आपने बोला मुझे कि मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप तुरंत उसको ज्वाइन कीजिए। 2 ही मिनट हाँ, पहले वही। मैंने को 5 2 मिनट सब कम, एवरीथिंग तो इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड, शीतला मैं मेरे जी। हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो ये कैसे हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, अपने आप सब आ रहा है। कह रहा हूँ ना, जब एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे ना तब समझ में आएंगे, तब लाइफ के सीक्रेट समझ में आएंगे कि सब कुछ अपने आप हो रहा है लाइफ में। और हम हमेशा परेशान रहते कि ये करना है वो करना है। अरे हो जाएगा, गुरुदेव बोलते हैं ना, रिलैक्स, बस वही रिलैक्स करो, स्माइल करो, मालिक को याद करो, काम तो होना ही होना है। काम कहाँ रुकना है, उनके राज में काम नहीं रुकना। कहा है ना, अखिलांड कोटि ब्रह्मांडा स्वामी। जब ऐसे पावरफुल गुरु आपके हैं, जो हजारों 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 यूनिवर्स के मालिक हैं, जिनके जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा पृथ्वी पे, आप उसी टाइम में उसी जगह उनके साथ है, उनके आशीर्वाद में, उनके सानिध्य में है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। रहस्य तो आने वाली जनरेशंस बोलेंगी। आपको भी जब समझ में आएगा कि आदमी को यूजली कब समझ में आता है कि जो टाइम बीत जाता है। तो अभी बताने वाले आ गए हैं, बता ही रहे हैं आपको। तो मौका मत छोड़िए उनको मिलने का, दर्शन का, आशीर्वाद का, उनकी बातों को फॉलो करने का। ट्विटर को स्पेशली, ठीक है, रोज ज्ञान आता है उसमें, तो मौका मत छोड़िए। ठीक है, तो चलिए, गुड, सेम एक्सपीरियंस। आई वाज वाचिंग द सत्वा टॉक सेशन राइट बिफोर जॉइनिंग द सेशन। अरे वाह कृष्णा, वेरी गुड। तो देखिए, मैं कहूँगा जिसको जिसको करना है, मेरा नंबर मैं यहाँ पर बोल ही दिया है, वैसे ही यहाँ डाल ही देता हूँ, ठीक है, चार्ट में। ठीक है, तो आप जो है रीच आउट कर लीजिएगा मेरे को। व्हाट्सएप रीच आउट का बेस्ट तरीका क्या है? व्हाट्सएप करिए मेरे को एंड आई विल रिवर्ट बैक। ठीक है, 9810227498 मेरा ही नंबर है, डायरेक्ट नंबर है। पर कॉल करने से अच्छा व्हाट्सएप करिए, क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं, सबको मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, कभी मीटिंग्स में रहता हूँ। तो बस व्हाट्सएप करिए, आई डेफिनेटली रिटर्न, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, कई बार बहुत सारे हो जाते हैं। तो पर यह है कि 24 से 48 घंटे के अंदर मैं रिवर्ट जरूर करूँगा, होगा तो इमीडिएटली करूँगा। ठीक है, चलिए, और कोई बात? सबको अच्छा लगा? एवरीबडी लाइक द सेशन? हाँ, ठीक लगा? कुछ त्रुटि तो नहीं मेरे से, कुछ गलती तो नहीं हुई? अमेजिंग, चलिए, गुड, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी, क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु।